श्रीमान 110 कैडर परेड पर परेड आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। वीरों की धरती पंजाब राज्य का एक सुंदर शहर कपूरथला, जो जालंधर शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हरियाली की चादर ओढ़े, देशभक्ति, मानव सेवा व अनेकता में एकता की एक अनूठी मिसाल पेश करता भारत के 24 स्कूलों में एक सैनिक स्कूल कपूरथला। 8 जुलाई सन 1961 में तत्कालीन रक्षा मंत्री श्री वी.के. कृष्ण मेनन द्वारा देश सेवा में समर्पित स्कूल ने कई महान विभूतियों का सृजन किया, जिन्होंने अपने अपने कार्यक्षेत्रों में कई उपलब्धियां प्राप्त की और अपने स्कूल का नाम रोशन किया। हरियाली के आंचल में बसा, लगभग 200 एकड़ क्षेत्रफल में फैला, ज्ञान, नम्रता व अनुशासन के लक्ष्य की साधना में लीन, माँ भारती के चरणों में समर्पित देश का एक उच्च कोटि का सैनिक स्कूल कपूरथला। आज तक सैनिक स्कूल कपूरथला पिछले लगभग 52 सालों में लगभग 700 कमीशन ऑफिसर्स भारतीय सेना को दे चुका है। हमारे विद्यार्थी हर एक क्षेत्र में, ना सिर्फ सेना में, बल्कि वो विद्यार्थी भी जो कि बाहर दूसरे क्षेत्रों में जाते हैं, बहुत ही अच्छा नाम कमा रहे हैं और स्कूल का नाम को भी रोशन कर रहे हैं। स्कूल में ध्यान कुछ खास चीज़ों पर दिया जाता है। सबसे पहले पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। हम प्रयास करते हैं कि जो भी बच्चा इस स्कूल में आता है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, हमारा प्रयास होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हों लोकल सराउंडिंग्स में, यानी कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा कंपटीशन उनको फेस करना पड़े। Within that period, try and finish off whatever you want to speak. Please do not repeat anything which has already been said by another speaker. Try and give out new and original idea. There are actually two sides of this topic. First is that if the politicians are debarred from heading sports bodies and ex-players are made the heads, they'll be able to identify the problems of the players, plan good tactics and choose better players. But at the same time, it is not necessary that they'll be good administrators also, as a lot of financial support, logistic support is required and facilities also, which the politicians will be able to get. But on the grey side, there's a lot of chance that the politicians misuse their power. So any eminent personality for that sake, or politicians who is honest, has the power to administer properly and has the zeal that they should win the game and is totally into the game, should be made the head of sport bodies. Thank you. In my opinion, I think that these politicians are only making profits out of their positions. So these politicians should be completely debarred
from these sports bodies. There are many coaches, sports scientists and experts who can go on these sports bodies as they know the better way to go on these sports bodies. Even the politicians take suggestions from these people only. So these experts should be made the head of these sports bodies. So in the end, I would only like to say that while in China we can see that the experts are governing these sports bodies, and we can also see the results that they are progressing more and more than India. So I would like to say that if in India these experts will rule in sports bodies, then surely there will be a drastic change in sports bodies in India. Thank you and have a nice day. Whenever we take the word politics or politicians, firstly, the first thing which come in our mind is scandals, gluttony and greed. So my friends, from my words, it's very clear that I am in the favor of debarring them as the head of sports bodies. But here I am not saying that all politicians are corrupted. I am saying, but it's their frame which have made them to appear so. And why not, my friends? After so many of my friends has given the example of IPL, Commonwealth, and not only this, today Indian Olympic Association is facing suspension from Indian International Olympic Committee only because of these politics and politicians. A person who was not politician, if he become a head of the sports bodies, do you give guarantee to me he is not corrupted? Do you give guarantee to me he should not fill his pocket with money? So please don't believe the politicians, they are corrupted. Even a common man is a corrupted. So in nutshell, I want to say that a person who was the head of the sports bodies, rather he was a politician or not, he should have knowledge about the sports. He should be honest. He should have encouraged to do something for the nation. Thank you and have a nice day. In my opinion, they should not be the head of sport bodies because most of the politicians are corrupted. I don't say that all are corrupted, but there are also some good politicians which earn money for BCC, and they have done many other good things. In my opinion, the ex-sportsmen should make the leader, like Milkha Singh, Fauja Singh. They know the real needs of sportsmen. छात्रों के बौद्धिक विकास के लिए निरंतर नए व बेजोड़ प्रयासों का सिलसिला जारी रहता है ताकि इनकी तार्किक व मानसिक क्षमता का प्रसार हो सके। हमारा स्कूल CBSE यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के साथ एफिलिएटेड है और सभी बच्चे कक्षा 12 का एग्ज़ाम यहाँ से देते हैं। उसकी तैयारी सभी बच्चों को करवाई जाती है। स्कूल का रूटीन इस प्रकार से रखा गया है कि जो भी बच्चा स्कूल में आता है वो अपने आप को मेंटल, फिज़िकल तो हर तौर से अपने आप को सेना के लिए उपयुक्त पाता है। हमारा प्रयास होता है कि बच्चा जब स्कूल के अंदर आए और जब यहाँ से निकले तो उसकी पर्सनैलिटी में एक डेफिनेट इम्प्रूवमेंट आना चाहिए। इस स्कूल के बारे में, पढ़ाई के बारे में मैं आपको कुछ बताती हूँ। यहाँ पे 6 से 12 तक की क्लासेस चलती हैं। ये प्योरली इंग्लिश मीडियम स्कूल है, प्योरली रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ के जो बच्चे हैं उनको 12 हाउसेस में बांटा गया है। सबसे पहले है होल्डिंग हाउस जिसमें कि छठी के बच्चे रहते हैं, उसमें 2 हाउसेस हैं होल्डिंग हाउस में। उसके बाद 5 जूनियर हाउसेस हैं जिसमें कि 7th से लेके 9th तक के स्टूडेंट्स हैं और 10th, 11th, 12th के लिए सीनियर हाउसेस हैं। इनमें आपस में कंपटीशन बना रहे इसलिए इंटर हाउस कंपटीशन कॉक ट्रॉफी भी स्कूल की तरफ से दी जाती है जिससे कि बच्चों में एक प्रतियोगिता रूपी प्रतिस्पर्धा की स्पिरिट बनी रहे। उसके लिए भी बच्चों को यहाँ पे तैयार किया जा सकता है। स्पोर्ट्स के अलावा भी स्कूल में बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जैसे कि विभिन्न तरह के लैब्स हैं, कंप्यूटर लैब है और लैंग्वेज लैब है, जो कि पंजाब के बच्चों में अक्सर देखा गया है कि उनको कम्युनिकेशन स्किल की थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को मिटाने के लिए यहाँ पे लैंग्वेज लैब भी है जिससे कि बच्चे अच्छे से अंग्रेजी सीख सकें और ज़िंदगी में कुछ कामयाबी पा सकें। चूँकि यहाँ की लाइफ बहुत ही डिसिप्लिन्ड लाइफ है, बच्चों को बाहर जाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल पाता है, केवल संडे को ही उनको बाहर जाने की परमिशन दी जाती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए स्कूल में काफ़ी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई गई हैं जैसे कि बैंक है, पोस्ट ऑफिस है,
CSD फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे उनको अपना रोज़मर्रे का सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जो भी सामान इनको चाहिए अपनी दिनचर्या से रिलेटेड, वो सब सामान उन्हें यहाँ पे स्कूल में दिया जाता है। सैनिक स्कूल कपूरथला पूर्ण रूप से हॉस्टल युक्त है, जहां अधिक से अधिक 625 छात्रों के खान पान व रहन सहन की व्यवस्था हो सकती है। हेलो, मेरा नाम विंग कमांडर अजय सिंह नेगी है। मैं यहाँ पे रजिस्ट्रार के पद पे पोस्टेड आया हूँ। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, जो जगह आप देख रहे हैं, ये सैनिक स्कूल कपूरथला का डाइनिंग हॉल है। इस जगह से जाने कितने ही ऑफिसर्स डिफेंस फोर्सेस जिन्होंने ज्वाइन की, एज ए कैडेट उन लोगों को पौष्टिक आहार देना और उनकी सेहत का ख्याल रखना, ये हमारा काम है। हमारी कोशिश रहती है कि उनको एक बैलेंस्ड डाइट जब तक वो यहाँ है उनको मिले, जिसमें कि मांसाहारी खाना, नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन खाना, दूध, दही, फल फ्रूट, मिठाई, ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। हर रोज़ खाने का मेनू अलग है, सुबह, दिन में और शाम को। खाने का मेनू हम साल में एक बार डिसाइड करते हैं, जिसमें कि हम कैडेट्स का रिप्रेजेंटेशन भी लेते हैं और उसके साथ हम टीचर्स भी बुलाते हैं और उनसे पूछा जाता है कि वो किस तरह का खाना पसंद करेंगे। और हमारी कोशिश रहती है कि उन लोगों को, जो लोग मांसाहारी खाने के, नॉनवेज खाने के शौकीन हैं, उनको वो भी मिले। जो वेजिटेरियन खाने के शौकीन हैं उनको वेजिटेरियन मिले। सीजनल फ्रूट्स और सीजनल वेजिटेबल्स, वो गर्मियों का मौसम हो, बरसात का या सर्दियों का, ये हमारी कोशिश रहती है कि उनको वो चीज़ ज़रूर मिले। किसी तरह का जंक फूड देना हम उसको ठीक नहीं समझते, तो वो चीज़ हमारे यहाँ बनती भी नहीं है। मैं नर्सिंग असिस्टेंट स्वरूपचंद शर्मा सैनिक अस्पताल में यहाँ पे एज ए नर्सिंग असिस्टेंट हूँ। और यहाँ पे सुबह हमारा जो रूटीन है वो सुबह लगभग 6 बजे शुरू होता है। 24 आवर्स फैसिलिटी है हमारे पास, कोई भी केस हो किसी प्रकार का। बाकी हमारे पास 18 बेड का हॉस्पिटल है ये, जिसमें 8 बेड जो हैं जनरल हैं, 2 जो हैं आइसोलेशन के हैं, 4 जो हैं वो हीट स्ट्रोक के लिए हैं। इसके अलावा कोई भी इमरजेंसी होती है हमारे पास तो हम सिविल हॉस्पिटल ले जाते हैं, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर ही है। बाकी एक हमारे पास डॉक्टर भी हैं जो कि हफ्ते में 2-3 बार विजिट कर लेते हैं। ये खूबसूरत इमारत जो कभी महाराजा कपूरथला का सिर्फ एक महल था, आज गवाह है कठिन परिश्रम, निरंतर अभ्यास व उत्कृष्ट ज्ञान साधना का। मेरा नाम नेल्सन दास है। मैं यहाँ का लाइब्रेरियन हूँ। सैनिक स्कूल लाइब्रेरी की एक ख़ास बात यह है कि एक दरबार हॉल में बना गया है। 13,000 किताबें, 21 न्यूज़पेपर्स, 33 मैगज़ीन्स हमारे यहाँ पे आती हैं। ये इन बच्चों के लिए आती हैं ताकि हम इन्हें NDA में भेज सकें। हम चाहते हैं कि यहाँ पे आके वो रीडिंग हैबिट्स, जो कि बहुत ज़रूरी है एक बच्चे के लिए ताकि वो आगे बढ़ सके, वो डेवलप करें। हमारे यहाँ पे रेफरेंस बुक्स हैं, टेक्स्ट बुक्स हैं, जर्नल, बायो, केमिस्ट्री, हर टाइप की बुक हैं। नॉवल से लेके छोटे छोटे बच्चों के लिए राइम्स की बुक्स, इन सारी टाइप्स की हमारे पास किताबें हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ इन चीज़ के लिए है ताकि हम रीडिंग हैबिट बच्चों के अंदर प्रमोट कर सकें। Myself, MS Bajwa. I am ex-student of this school. Presently, I am teaching mathematics. I joined this school in 1979 as a student in 6th class and passed out in 86. After doing my post-graduation, I am teaching mathematics in this school. As far as this library is concerned, पहले काफ़ी बुक्स कम थी, लेकिन अब कम से कम 13,000 बुक्स हैं और हर बच्चे को न्यूज़पेपर, एक न्यूज़पेपर हर बच्चे को सुबह मिलता है। एंड आई थिंक दे आर टोटली अप टू डेट। यहाँ के विशाल खेल मैदानों में, यहाँ के कण कण में रची बसी है कई महान कैडेट्स की पसीने की खुशबू।
यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ हैं इन बच्चों के लिए, जो कि आगे इनको ज़िंदगी में अगर ये फ़ौज नहीं भी ज्वाइन करते हैं काफ़ी कुछ काम आएंगी। जैसे कि यहाँ पे स्विमिंग पूल है, जिम्नेज़ियम है, आप देख सकते हैं ग्राउंड में यहाँ पे 6 बास्केटबॉल कोर्ट हैं, हॉकी ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल ग्राउंड्स हैं, फुटबॉल फील्ड्स हैं और स्विमिंग पूल भी अवेलेबल है। एक ऑडिटोरियम है जहाँ पे कि 600 बच्चे एक साथ बैठ के अपनी कोई भी एक्टिविटीज़ हैं वो कर सकते हैं। बच्चे तो मिट्टी के कच्चे बर्तन की तरह होते हैं, इनको एक सुदृढ़ व संपूर्ण आकार देते हैं इनके कोच, इनके अध्यापकगण। फिजिकल डेवलपमेंट के लिए खेलों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। हमारा प्रयास होता है कि हर बच्चा कम से कम 2 मेजर गेम और 1 माइनर गेम जरूर खेले। इसीलिए पूरे बच्चों को 12 हाउसेस में या 12 सदन में विभाजित किया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को खेलने का और बाकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने का मौका मिल सके। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को यहाँ से बाहर भी भेजा जाता है, विभिन्न तरह की ट्रिप्स प्लान की जाती हैं, एक्सकर्जन्स और टूर्स भेजे जाते हैं हिस्टोरिकल जगहों में, जैसे कि पचमढ़ी है, आगरा है। इसके अलावा भी एनडीए IMA के लिए भी बच्चों को भेजा जाता है, ताकि वहाँ की कार्रवाई को देखकर बच्चे मोटिवेट हो सकें और अच्छा करने की कोशिश कर सकें उनके एग्ज़ाम्स में। उसके लिए नेशनल डिफेंस एकेडमी बच्चों को भेजते हैं और IMA में जब भी उनकी पासिंग आउट परेड्स होती है उसमें भी बच्चों को आगे भेजा जाता है। क्लास 7th से ही प्रत्येक छात्र के लिए NCC अनिवार्य है। NCC में ड्रिल, एनुअल ट्रेनिंग, कैंप्स व राइफल फायरिंग ट्रेनिंग का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। स्कूल का एक मुख्य आकर्षण यहाँ की शानदार बैंड पार्टी, जिसने कई बार गणतंत्र दिवस व स्वतंत्रता दिवस पर अपने शानदार प्रदर्शन से लाखों करोड़ों देशवासियों का मन मोह लिया। कक्षा 6वीं से 12वीं तक CBSE प्रणाली पर आधारित स्कूल का शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। स्कूल में एडमिशन क्लास 6 व क्लास 9th में ही संभव है। एडमिशन के लिए 6th क्लास के लिए 10 से 11 साल व 9th क्लास के लिए 13 से 14 साल तक होना अनिवार्य है। एडमिशन क्लास 6 में होता है, जो कि एक ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट पे निर्भर करता है। ये टेस्ट हर साल जनवरी के पहले संडे को ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके फॉर्म आमतौर से अक्टूबर में मिलने प्रारंभ हो जाते हैं और दिसंबर के पहले हफ्ते तक भरे हुए फॉर्म वापस स्कूल में मंगवाए जाते हैं। रिटन टेस्ट का स्टैंडर्ड लगभग NCERT के कक्षा 6 के क्वेश्चन पेपर से कक्षा 5 और कक्षा 6 के क्वेश्चन पेपर्स के बराबर होता है। कुछ सीट्स कक्षा 9 में भी अवेलेबल रहती हैं, जिनके लिए भी रिटन टेस्ट होता है। विद्यालय में जो फी स्ट्रक्चर है, पूरे साल की फीस इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, बोर्डिंग, लॉजिंग, एवरीथिंग, सब कुछ मिला के लगभग 72,000 के लगभग है। लेकिन इस 72,000 में से स्कॉलरशिप और बाकी सब्सिडी मिला के लगभग 42,000 फीस वापस विद्यार्थी को मिल जाती है। तो इफ़ेक्टिवली
कोई भी विद्यार्थी लगभग 30,000 रुपये में पूरे साल का खर्चा निकाल सकता है। स्कूल के मुख्य उद्देश्य हैं राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी के लिए शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक रूप से एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण, रक्षा सेवाओं के अधिकारी वर्ग में क्षेत्रीय संतुलन को कायम रखना, शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक रूप से सुदृढ़ भारतीय नागरिकों का निर्माण। I am Gurkirpal Singh Taliwal, National Awardee, the senior most teacher of Sainik School Kapurthala. I feel privileged that I have been serving this school for 37 years. ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਕੋਈ ਕੇਵਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇਨਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਮ ਮੱਧ ਵਰਗ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਤੋਂ ਨੀਵੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ कि ये उन्होंने बच्चों लिए सुनहरी मौका है, क्योंकि सोचते हैं शायद ये फौजी बच्चों लिए है। ये स्कूल पूरे पंजाब के सभी बच्चों के लिए बना हुआ है। इनफैक्ट मोर देन 50% वैकेंसीज, यानी कि आधी से ज़्यादा वैकेंसीज सिर्फ सिविलियंस के लिए ईयर मार्क्ड हैं, रिजर्व्ड हैं। ज्ञान, नम्रता, अनुशासन, कड़ी मेहनत, समर्पण व आत्मविश्वास की लड़ी में पिरोए गए ये अनमोल नगीने, जिनके नेतृत्व से देश गौरवशाली होता है, जिनके शोध से, चिंतन से दुनिया लाभान्वित होती है, जिनकी क्षमता से संपूर्ण जगत का कल्याण होता है। कोटि कोटि अभिनंदन उन गुरुजनों, उन मेहनती कोच व उस्तादों का जो नन्हे नन्हे सपनों को एक विशाल व दृढ़ आयाम देते हैं। अपने घर परिवारों से दूर इन किशोर हृदयों में श्रेष्ठता, मानवता व देश प्रेम का अद्भुत भाव उत्पन्न करते हैं।